मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو ان لوگوں سے جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف. بے شک وہ لوگ ہرگز دین کا اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ نہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہو اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بدلے ہرگز اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور خیال نہ کرے کافر لوگ کہ ان کے لیے مہلت بہتر ہے ان کے حق میں. بے شک ڈھیل دینا ان کے لیے اس وجہ سے ہے تاکہ وہ جرم میں اور ترقی گناہ میں اور ترقی کرے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. الحمدللہ آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 177 اور 178 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیتوں سے پہلے جو سبق تھا اور جو درس تھا قرآن کریم کا جو پیغام تھا وہ اس بات کو لے کر تھا کہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. یعنی شیطان کی بات کو جو سنتے ہیں اور اس کی بات پر جو چلتے ہیں تو انہیں ڈراتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یعنی کس سے ڈراتا ہے؟ جیسے جنگ احد میں لڑائی ہوئی کہ تم کیوں اپنی جان کو خراب کرنے کیوں جا رہے ہو، کیوں تم ہلاکت میں ڈال رہے، تو اس طریقے سے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا تھا کہ تم خوف نہ کرو ان سے خوف نہ کھاؤ. خوف کھاؤ تو میرے سے کھاؤ اگر تم سچے مومن ہو. تو یہ پچھلی آیت کا درس تھا اور یہ پیغام تھا. آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تسلی کس بات کی؟ کہ جنگ احد کے بعد منافقین بڑی حرکتیں کر رہے تھے، بڑے پریشان کر رہے تھے اور مسلمانوں کو بہکا رہے تھے، مسلمانوں کو نہ جانے کس طریقے سے پھسلا رہے تھے. اور کفر کے اندر یعنی جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو منافقین جو ہے کفر کی طرف چلے جاتے
और यूं कहते कि देखा हम यहां से ऐसे बच गए, तुम अपनी जान को हलाकत में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि वो लोग, ए पैगंबर आप उनसे गम ना कीजिए, वो हरगिज दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगरचे सब लोग काफिर बन जाए, मेरा दीन फिर जिंदा रहेगा और ये गालिब होकर रहेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरीके से ये भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला असल में ये चाहते हैं। और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि पैगंबर अगर उनका कुफ्र में रहना आपको गम में डालता है, आपको रंज में डालता है, तो क्यों आप रंज में पड़ते हो, क्यों आप गम में पड़ते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवीरन उनके मुकद्दर में ये बात लिख दी है कि आखिरत की नेमतों में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जब आखिरत की नेमतों से उन्हें महरूम कर दिया है तो फिर आप उनसे मुवाफिकत ना करें, आप उनसे अपने में मिलने में उम्मीद ना रखें, क्योंकि रंज जो होता है, गम जो होता है, वो किसी से उम्मीद की बुनियाद पर होता है। मुझे आपसे उम्मीद है, तो इस वजह से अगर आप लोग सब उठकर चले जाए तो मुझे गम होगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि आप लोग कुरान सुनने आए हो, आप लोग कलाम पाक की जियारत करने के लिए आए हैं, तो ये उम्मीद थी। लेकिन आप उठकर चले गए तो मुझे रंज होगा, गम होगा कि कैसे लोग अल्लाह का कलाम सुनाया जा रहा और लोग उठकर चले गए। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने, तो इसलिए आप वसल्लम को गम था कि ये लोग क्यों जहन्नम की तरफ धिके जा रहे हैं, क्यों लोग बात नहीं मानते हैं, क्यों ये कुरान से भाग रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इन लोगों की जिंदगी में और इनकी तकदीर में भागना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले अपनी उम्मीद को वहां से हटा लें कि ये लोग ईमान के अंदर दाखिल नहीं होंगे। जब आपकी उम्मीद वहां से कट जाएगी तो रंज खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? जब मेरी उम्मीद आपसे खत्म हो जाएगी तो मेरा रंज भी। इसी वजह से आप वसल्लम को क्या फरमाया कि आप उनसे उम्मीद ना रखें इस बात की कि वो ईमान लाए, वो इसी तरह रहेंगे। आखिरत की नेमतों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कोई हिस्सा नहीं दिया है, और आखिरत की नेमतों से महरूम तो है ही, मजीद उनके लिए एक बड़ा अजाब है जहन्नम। एक तो नेमतें खत्म, ये बहुत बड़ी सजा है भाई। एक आदमी का खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, ये बहुत बड़ी सजा है। लेकिन ऊपर से भाई पिटाई भी कर रहे हैं, ऊपर से फिर छिताई भी हो रही है, तो ये तो और बड़ी सजा हो गई। तो इसी तरीके से मुनाफिकीन का हाल यही होगा। आखिरत की नेमतों में, जन्नत की नेमतों में कोई हिस्सा नहीं, ना अल्लाह का दीदार है, ना कोई नेमत है, किसी तरीके से कुछ नहीं है। और मजीद उनको पिटाई के लिए और सजा के लिए उनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। उसी को कुरान करीम के यहाँ की इस आयत में इरशाद फरमाया, वला यहज़ुनका, ए पैगंबर आप गम ना करे, रंज ना करे, अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, उन लोगों से जो दौड़ते हैं कुफ्र के अंदर। यानी जब मुसलमानों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो फौरन मुनाफिकीन लोग क्या करते हैं? मुनाफिकीन किसे कहते हैं? जो जाहिरन मुसलमान, टोपी दाढ़ी लंबा कुर्ता है और अंदर कुफ्र भरा हुआ, उसे कहते हैं मुनाफिकीन। तो वो लोग क्या करते हैं? जब मुसलमानों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो फौरन भाग जाते हैं काफिरों में, भाई हम तुम्हारे आदमी हैं, हम उन्हीं के साथ थोड़ा ही है, हम उन्हें धोखा देने के लिए गए हैं। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैया, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सारे चले जाओ। अल्लाह का दीन तो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है और आखिरत भी जिंदा रहेगा। चाहे कोई भी ना नमाज पढ़ो, अल्लाह तो न जाने किसे पढ़वा देगा। नहीं भाई, चाहे कोई भी कुरान ना पढ़ो, अल्लाह रब्बुल पता नहीं किस किस से कुरान पढ़वा दे। तो इसी वजह से यूं फरमाया, युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, अल्लाह तबारक व ताला ये चाहते हैं कि ना मिले इन लोगों को आखिरत में कोई हिस्सा, आखिरत की नेमतों में से कोई फायदा ना उठाए। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कुफ्र में ही रखते हैं, मुनाफिकीन रखते हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए मजीद बड़ा अजाब है। आगे फरमाया, बहरहाल वो लोग, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार कर रखा है। एक तो मुनाफिकीन का हाल आपने समझ लिया कि जाहिरन मुसलमान और बातिन अंदर कुफ्र, शिर्क, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, मुसलमानों की बात दूसरों के तक पहुंचा देना, उन्हें कहते हैं मुनाफिकीन। दुश्मनों तक पहुंचाना। अब किसका जिक्र है? जो खुलेआम काफिर है,
जो खुलेआम काफिर है, मुशरिक है, धड़ल्ले से जो कुफ्र, माँ बाप खानदानी को काफिर है, तो उनका जिक्र फरमाया, इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानी, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार कर रखा है, जो काफिर हैं, बिल ईमानी, ईमान के बदले। असल में क्या पैदा हुए थे वो? मोमिन पैदा। हर दुनिया में आने वाला बच्चा मजहब इस्लाम पर पैदा होता है। आपने सुनी हदीस वो? हाँ। फिर माँ बाप उसके यहूदी बना देते हैं, मुशरिक बना देते हैं, काफिर बना देते हैं, नसरानी, जिस तरह माँ बाप होते हैं उसी में वो ढल जाता है। नहीं तो हर आने वाला इंसान दुनिया के अंदर वो मुसलमान ही आ रहा है, ईमान वाला ही आ रहा है। तो इस वजह से अल्लाह क्या कह रहे हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र की इख्तियार किया ईमान के बदले, चाहिए तो दोनों मोमिन बनना, लेकिन ईमान को खत्म करके ईमान की जगह काफिर बने हुए अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूलों का इनकार करते हैं, अल्लाह के कुरान का इनकार करते हैं। लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह का दीन का, ये भी अल्लाह के दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हरगिज़ अल्लाह को जरर नहीं पहुंचा सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए भी क्या है? दर्दनाक अज़ाब, इनके लिए भी वही जहन्नम का अज़ाब है। आगे फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम। अब समझो ये बात, काफिर हो, मुनाफिक हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, नसरानी हो, हर एक फिरका जो मजहब इस्लाम से अलग जिंदगी गुजार रहा है, हर एक का ख्याल, हर एक का गुमान क्या है कि हम तो बड़ी नेमतों में, गाड़ी हमारे पास, जहाज हमारे पास, हुकूमत हमारे पास है, समझ रहे हैं हालात, पुलिस हमारी, जज हमारे, सब कुछ हमारा है। तो क्या समझ रहे हैं इससे समझ रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर है। अगर हम गलत होते तो परवरदिगार हमें इस तरीके से नियमतों में ना रखते। मुसलमान बेचारा बोखला फिर रहा है, बिचला हो यार, हम अल्लाह वाले हैं और अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं और हमारा हाल ये तो कयामत तक रहेगा हमारा हाल इसी तरीके से। ये हालात सुधरने वाले नहीं है, इसी तरीके से चलेगा काम। मकसद क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत का? अल्लाह रब्बुल इज्जत का मकसद ये है कि जब तक ये मुसीबतें मुसलमानों पर नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा मुनाफिक कौन है, मुशरिक कौन है, काफिर कौन है, मुसलमान को। सब लुतरले मिले फिरते रहेंगे, फिर वो उसके यहाँ खा रहा है, उसके यहाँ खा रहा है, वो उसके यहाँ जा रहा है, उसके यहाँ, उसके त्योहार में शामिल, मेरे त्योहार में शामिल, वो भी नमाज पढ़ लेता है, वो भी रोजा रख लेता है, हम भी दिवाली होली पर पटाखे फोड़ देते हैं। पता कैसे चलेगा इसका? पता उसी वक्त चलेगा जब मुसीबतें आएगी, जिस तरीके से अब आ रही है। अब मालूम होगा कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक है, कौन ईमान वाला है और कौन धोखेबाज है। ये पोल तो उसी वक्त खुलेगी। इसलिए फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू, और गुमान ना करे, ख्याल ना करे काफिर लोग, अन्नमा नुमली लहुम, कि बेशक हम मोहलत दे रहे हैं उनको, कि बेशक हमारा ढील देना उनको, खैरुल लिअनफुसिहिम, उनके लिए, उनके हक में बेहतर है। यानी अपने हक में बेहतर ना समझे, ये ख्याल ना करे। क्यों? इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम इसलिए मोहलत दे रहे हैं ताकि गुनाह के अंदर और बढ़ जाए। अभी बात समझ में नहीं आई, अब समझिए। एक उस्ताद है, एक शागिर्द है। शागिर्द बैठा हुआ खेल रहा है, सबक याद नहीं कर रहा है। उस्ताद ने कहा, भाई सबक याद कर। तो खेल रहा है, तो उस्ताद क्या करता है, उसे कहना छोड़ देता है, खेलता रहे, जब सबक लेकर आएगा फिर धुलाई करूंगा तेरी, होता नहीं, तो खेलता रहे, उसे कुछ नहीं कहता। बच्चा क्या समझता है, अरे उस्ताद को मेरे से मोहब्बत है इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। बच्चा ये समझ रहा ना कि देखो सबको मार रहे हैं, कह रहे हैं, और मैं खेल रहा है जब से मैं बैठा हुआ हूँ, ना सबक याद कर रहा हूँ, और उस्ताद मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। मुझे उस्ताद को मेरे से मोहब्बत है। लेकिन और उस्ताद क्या समझ रहे हैं, जब सुबह सबक सुनाने आएगा फिर इसकी धुलाई होगी, पिटाई होगी, और ज्यादा खोलने दे, गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से ये पूरा जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, बस वही। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या उस्ताद है, अल्लाह मालिक है, खेल ले।
کر لے جو کچھ کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار، کچھ بھی کر، بدنام کر، الزام لگا، کچھ بھی کر لے، جب آئے گا بس اسی کو قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے. یہ اس وقت کے حالات مدینے کے اور آج کے حالات دیکھ لیجئے. قرآن بالکل آپ کے سامنے آئینہ ہے. قرآن کا دکھا رہا ہے آپ کو آئینہ. اب اگر آئینے میں اگر ہمارا منہ پر کچھ لگا ہوا ہے تو آئینے کو پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ دھو کر آؤ، پھر آئینے میں صحیح چمکے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ارے آئینے میں یار ہمارے حالات کتنے خراب ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ادھر ادھر. نہیں، ہمیں اور اچھا بننا ہے. آئینہ ہمارے سامنے ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے. حدیث شریف میں آیا احفظ اللہ یحفظ کا، جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے. بتاؤ کس کے یاد ہے یہ سبق؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق کس وقت یاد دلایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں، اور یوں کہتے جا رہے ہیں ہمارے نبی، پیارے بچے میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم 5 وقت کی نمازیں پڑھو، روزے رکھو رمضان میں 1 سال کے، 31 دن کے 1 سال میں، زکوٰۃ دو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے احکام. بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ اللہ کے حکم ہیں. جب تم ان پر آ جاؤ گے، تم چاہے کہیں چلے جاؤ، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، ترمذی کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. مسلمان جو پیٹ رہا ہے، چھت رہا ہے، وہ سب اپنے اعمال بد کی وجہ سے چھت رہا ہے، پیٹ رہا ہے، نہیں تو اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں. تو اس لیے فرمایا انما نملی لهم لیزدادوا اثما. سمجھ میں آ گئی بات؟ استاد کیا سمجھ رہا ہے؟ جب صبح سبق سنانے آئے گا پھر اس کی پٹائی ہوگی. اور بچہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے سے محبت کر رہے ہیں استاد، میرے سے محبت کر رہے ہیں. تو سارے کافر کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے مالک کو ہم سے محبت ہے، ہمیں گاڑی ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، ان کے پاس کیا ہے؟ تو اس لیے نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. قرآن آپ کو تسلی دے رہا ہے، آپ کو دلاسا دے رہا ہے، تھیپی دے رہا ہے. ایسے نہیں کرو، جو کام کرنا ہے اس اللہ کے حکموں کو ادا کرتے رہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور پھر کیا ہوگا؟ لیزدادوا اثما، جب ان کو گناہ کے اندر ترقی ہو جائے گی، گناہ کے اندر اور زیادہ لمبی عمریں ہوں گی. آج مسلمان کی زیادہ عمر نہیں ہے، ہندوؤں کی بہت عمر ہے. ان کی لمبی عمر کیوں ہے؟ تاکہ اور گناہ زیادہ کر لے، اور گناہ زیادہ کر لے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. ان کے لیے ذلت آمیز 3 عذاب کا ذکر فرمایا یہاں پر. بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے. انشاءاللہ اگلا سبق اگلے درس میں آپ کے سامنے جو پیغام آئیں گے اس کو سننا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو پیغام یہاں پر آئے ہیں اللہ ہم سب کو تسلی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان حالات میں ہمیں اپنے حکموں کی پابندی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ اپنے حکموں کی توفیق، پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا